Good morning, student. Welcome to the Gyanmiti online classes. Today we discuss English textbook. Okay, chapter 12 exercises. Okay, chapter name is all about dolphin. All about dolphin. You know, in the earlier we have discussed about all about dolphin, and today we have to do some question answer. So let's see your book page number 95 and write all the question answer in your copy. Okay, properly. So first we do how are dolphin different from us. Complete the table. So you see 95 page one of the table. Okay. So how are the dolphin different from us? Complete the table. इस टेबल में हम लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है. So just you see blackboard properly. Okay. How are the dolphin how are dolphins different from us? Okay, so we have to do this. So you all are just see properly a blackboard and we have to do some question answer. Just you understand and do yourself. Okay, write all the number, do not let anyone. So first ourselves, we use our teeth to chew. हम लोग अपने दांत को किसमें इस्तेमाल करते हैं? कोई भी चीज को चबाने में, ठीक है. We use our teeth. ओके, कोई भी चीज को हम लोग क्या है चबाने में हम लोग दांत का इस्तेमाल करते हैं. But here the dolphin different from us. So here dolphin use their teeth to catch their food. ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर लिखा है? We use our teeth to chew. हम लोग जो है अपना दांत का इस्तेमाल चबाने में करते हैं. But dolphin से dolphin use their teeth to catch their food. डॉल्फिन जो है अपना जो खाना को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए वो अपना दांत का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. So here the difference. Then number 2, you see and write. We have hair. Okay. हमारा जो है बाल नहीं है. We have hair. But dolphin है. Dolphin है smooth, shiny skin and fins. ठीक है. यहाँ पे डॉल्फिन का उसका स्मूथ शाइनी स्किन है और उसका फिन्स रहेगा, ठीक है. उसका जो फिन्स जो उसे तैर पाएगा, जितना भी पानी हो उसमें जो अपने फिन्स के सहारे तैर पाएगा, ठीक है. डॉल्फिन है स्मूथ शाइनी स्किन एंड फिन्स. So write this one number and two number in your copy. Okay. Then you have to do another number. Just see the blackboard properly. All the number and write properly. Okay. So you have to do number 5. Dear student, you already know about some question answer. So do yourself, and otherwise you have to see blackboard properly.
what I am doing, just you see, watch your blackboard properly. Okay. So थर्ड नंबर उसी तरह से टॉक यूजिंग वर्ड्स। हम लोग जैसे बात करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूजिंग करते हैं। डॉल्फिन से डॉल्फिन, टॉक, क्वीन, टॉक यूजिंग whistling, whistling, clicks and square. S-Q-U-E-A-L-S, square. Okay. So dear student, just to see the blackboard properly, we talk using words. हम लोग कुछ बात करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूजिंग करते हैं, जैसे कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ घूमने जा रहे हो, उसी तरह से कुछ वर्ड यूज करते हैं। बट डॉल्फिन टॉक यूजिंग व्हिसिल, क्लिक एंड स्क्वेयर। उन लोग अपना लैंग्वेज जो है एक व्हिसिल के माध्यम से, क्लिकिंग के माध्यम से या स्क्वेयर्स करके उन लोग अपने इशारे से एक दूसरे से बात करते हैं। उनके जो बिडाले के जो डॉल्फिन्स रहते हैं उनके साथ इसी तरह से बात करते हैं। और लोगों के साथ भी आप लोग कई सारे डिस्कवरी चैनल में देखे होंगे, डॉल्फिन्स जो है लोगों के साथ भी घुल मिल जाता है और उन लोग भी उनके साथ जो है व्हिसिल के माध्यम से, क्लिकिंग्स के माध्यम से, स्क्वेयर्स के माध्यम से उन लोग डॉल्फिन के साथ बात करते हैं। ठीक है, डॉल्फिन को भी समझ आ जाता है, लोगों को भी समझ आ जाता है। ठीक है, सो हियर द डिफरेंस, we talk using words but dolphin talk using whistle, clicks and square. Okay, then see the number 4, we breathe. So nose. Okay, we breathe the through nose. But dolphin, here the difference. Dolphins breathe through blowhole. Blowhole at the top of their head. Okay. So here the difference, we breathe through nose. हम लोग अपना ब्रीथिंग जो है निश्वास या प्रश्वास लेना है या कुछ, ठीक है, तो ब्रीथिंग जो हम लोग करते हैं नोज के सहारे करते हैं। बट डॉल्फिन ब्रीथ थ्रू ब्लोहोल, सो ब्लोहोल एट द टॉप ऑफ देयर हेड, उसका जो हेड है वो टॉप का लेयर में रहता है, वो उसी से सहारे हम ब्रीथिंग लेते हैं। ठीक है, डॉल्फिन ब्रीथ थ्रू ब्लोहोल एट द टॉप ऑफ देयर हेड। जो हेड में जो टॉप का लेयर रहता है डॉल्फिन्स का, उसी साइड में ब्रीथिंग करता है। ठीक है, so third number and fourth number you have to write in your copy. Okay, then you have to do last number 5. Okay, let's see the blackboard. Then we have to 5 and 6 number. Sorry, one number is 6 number is. We have number 5. We can see in daylight. इसको हम लोग खाली दिन में भी देख सकते हैं. We can see in daylight.
यानी कि हमारे दी हुई में हम लोग को रोशनी जो मिलता है उसकी से आगे हम लोग देखते हैं, बट डॉल्फिन है इज द डिफरेंस। डॉल्फिन कैन सी at night too। ओके, यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है। वी कैन सी इन डे लाइट, यानी कि हम लोग दिन में ज्यादा देख सकते हैं, रात में हम लोग को बिना रोशनी, बिना टॉर्च लाइट, बिना लाइट से हम लोग देख ही नहीं पाएंगे कोई भी चीज। बट हियर द डॉल्फिन से द डिफरेंस, डॉल्फिन कैन सी एट नाइट टू। जितना ज्यादा रात होता रहता उतना ज्यादा उनका रोशनी बढ़ता जाता है, और जितना रात हो उतना वो ज्यादा देख सकते हैं। ठीक है, तो डॉल्फिन कैन सी एट नाइट टू, यानी बहुत ज्यादा हम लोग से देख सकते हैं। ठीक है, देन 6 नंबर, we sleep with both eyes closed। But dolphins say different, dolphins sleep with one eye two। Okay, so here the difference, we sleep with both eyes closed। हम लोग जब सोते हैं तो दोनों आंख बंद करके सोते हैं, है कि नहीं? दोनों आंख जो है बंद कर देते हैं। हम लोग जब सो जाते हैं दोनों आंख बंद हो जाते हैं, तब जाकर हम कोई भी अगर एहसास भी करना है, फीलिंग्स करना है, तो कोई सोया है तो हम लोग देखेंगे कि उसका दोनों आंख बंद है या नहीं है। अगर दोनों आंख बंद है तो पूरा सोया है। ठीक है, और हम आसानी से जान लेते हैं कि पूरा अच्छे से सो गया। कोई स्लीप विद बोथ आईज क्लोज्ड, हम लोग जब सोते हैं दोनों आंख बंद करके सोते हैं, बट हियर द डॉल्फिन स्लीप विद वन आई क्लोज्ड। ठीक है, लेकिन डॉल्फिन जब सोता है तो एक आंख बंद करके सोता है, एक आंख खुला रहता है, एक आंख बंद रहता है, ताकि उसको कुछ मतलब कोई एनिमीज आ जाए या कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाए, कोई घटना घट जाए तो देख सके। एक आंख से सो जाता है, एक और एक आंख के आंख से देखता रहता है। ठीक है, ताकि उसका सुरक्षा हो। ओके, अपना खुद का सुरक्षा उसको करता है। ठीक है, तो उसी तरह से डॉल्फिन स्लीप विद वन आई टू, बहुत ज्यादा देख सकते। ओके, so dear student, write all the number 1 to 6 number properly. Okay, then see, we have to do another number with the blackboard properly. We have to do another number. Okay, okay dear student, let's see the blackboard properly. Okay, we do next number. Answer this question by filling in the blanks. Okay, answer this question by filling in the table, in the blanks, sorry, in the blanks. Okay, answer this question by filling in the blanks. You see 95 page. First number we have to do what was the name of the dolphin Tusa fell in love with? Okay, so here the question. Answer is Tushar fell in love with
Dolphina. Here the blanks we have to put up the dolphin. The dolphin. So dear students, let's see the blackboard properly. What are the name of the dolphin? तुषार पेरिंग डॉल्फिन. तुषार जो है डॉल्फिन का नाम जो है अपने मतलब प्यार से उसको क्या बोला? क्या? तुषार पेरिंग डॉल्फिन द डॉल्फिन. ओके, उसको प्यार से बहुत मतलब उसको प्यार करते थे डॉल्फिन को, इसीलिए उसका प्यार से नाम रखे थे डॉल्फिना. व्हाट? Dolphin. Okay, so write this one. Okay, one number we have to complete it. Here you have to put a dolphina. Okay, in blanks you have to put a dolphina. Name is dolphin. Then you have to do another number. Okay, in this class and see properly all the video for Gyanjati online classes. Number 2, what do dolphin? What do dolphins use their teeth for? Again, we have to do this question. What do dolphin use their teeth for? अपना जो दांतों से डॉल्फिन क्या है? ठीक है? Answer. Dolphins use their teeth for catching their food. Catching their food. Okay. So, dear student, what do dolphin use their teeth for? डॉल्फिन का जो दांत है यानी टीथ है उसका इस्तेमाल डॉल्फिन किस तरह से करता है? सो हियर डॉल्फिन यूज देयर टीथ फॉर कैचिंग देयर फूड. यानी कि हम लोग जैसे चबाने में कोई भी चीज को चबाने में दांत का इस्तेमाल करते हैं, बट डॉल्फिन सेल्फ डिफरेंस. ओके, डॉल्फिन यूज देयर टीथ फॉर कैचिंग देयर फूड. कोई भी फूड या कोई भी उसका शिकार को पकड़ने के लिए ये अपना दांत का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? सो आंसर इज कंप्लीटेड. सो यू हैव टू पुट अप दिस blanks for catching the food. For catching the food. Okay? Dolphins their feet for catching. Dolphin use their feet for catching their food. Okay? Number 2 is completed. So let's see another number continuously. Okay, number 3 we have to do. Let's see page number 96. Now we have to do page number 96. Now what's that? Okay, dolphin are not fish. डॉल्फिन आर नॉट फिश. व्हाई? डॉल्फिन जो है मछली नहीं. क्यों? व्हाई? तो आंसर इज हियर डॉल्फिन्स आर नॉट फिश. ओके, नॉट फिश because they cannot breathe in water. Okay, so just we have to using blanks cannot breathe. वो जो है अपना निश्वास प्रश्वास जो रहता है तो पानी में नहीं निकलता, इसलिए डॉल्फिन जो है एक फिश नहीं है. डॉल्फिन आर नॉट फिश. व्हाई? डॉल्फिन जो है फिश नहीं. क्यों? डॉल्फिन्स आर नॉट फिश बिकॉज़ दे कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर. उन लोग ब्रीथिंग ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाते. उन लोग ज्यादातर आप लोग
बहुत बड़ा बड़ा ओशन में या सी में देखे होंगे, बाहर ही रहते हैं कुछ दिनों तक, उसके बाद फिर पानी में चले जाते हैं, ठीक है। उन लोग जो है अपना सर का जो ऊपर का भाग रहता है उसी से हम लोग अपना ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। और पानी में जैसे मछली जो है डूब के भी अंदर जाकर हम लोग ब्रीथिंग कर पाते हैं, उसी तरह से डॉल्फिन जो है ये पानी में ब्रीथिंग कर नहीं पाते, ठीक है। डॉल्फिन आर नॉट फिश बिकॉज़ दे कैनॉट ब्रीथ इन वाटर, okay. So finally you have to note in your copy, then you have to do fourth number. Let's see the blackboard number, okay. I hope you are understand all the numbers properly, because I am not very continuously talking about English, just little you have to understand for yourself better, so you have to using Hindi also, okay. So number 4, just see the blackboard. How do dolphin play? Okay. How do dolphin play? डॉल्फिन किस तरह से खेलता है? हम लोग जैसे हम कहते हैं ग्राउंड में बहुत सारे खेल है, जैसे अब हम लोग का फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और बहुत सारे खेलने को लेकर इंडोर आउटडोर, तो उसी तरह से डॉल्फिन जो क्या खेलता है? हाउ डू डॉल्फिन प्ले? ओके, किस तरह से डॉल्फिन खेलता है? सो लेट्स सी द ब्लैकबोर्ड. डॉल्फिन jump high over the waves. High over the waves. डॉल्फिन पहले तो वेव्स जो समुद्र का या बड़े बड़े महासागर का जो वेव्स उठता है उसी में वो जंप करता है. आप लोग बहुत सारे देखेंगे डिस्कवरी चैनल या टीवी चैनल पे बहुत सारे आप लोग को डॉल्फिन देखने को मिल जाएगा. ओके, रियली में आप लोग को बहुत बड़ा बड़ा जू में जाने वैसे देखने को मिल जाएगा. सो डॉल्फिन जंप हाई ओवर द वेव्स. फर्स्ट डॉल्फिन जंप हाई ओवर द वेव्स. They follow the boats. बहुत बड़े बड़े जहाज को वो फॉलो करता है, ठीक है, बोट्स को, नाव को फॉलो करता है. एंड प्लीज this with each other. देखो यहाँ पे एक दूसरे से जो डॉल्फिन्स, बहुत सारे डॉल्फिन्स रहते हैं, एक दूसरे को चेस करना, उसका पीछा करना. एक आगे में चल रहा है तो उसको फिर पीछा करना. हम लोग जैसे साइकिलिंग करते हैं, मोटरसाइकिलिंग करते हैं, हम लोग इससे चेस करते हैं. हम लोग पीछे रहना नहीं चाहते. कोई भी आजकल के दुनिया में पीछे रहना नहीं चाहते, बच्चे हो या बड़े हो. तो उसी तरह से डॉल्फिन जंप हाई ओवर द वेव्स. डॉल्फिन पहले जो लैंडिंग रहता है, लहर जो रहता है, उसमें से ऊपर उठ के आता है, उसमें मजा लेता है, जंप करता है. देन दे फॉलो द बोट्स. बहुत सारे नाव को या शिप्स को फॉलो करता रहता है, ठीक है, उसके पीछे 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 जाता है, ठीक है, उससे आगे भी चला जाए वो चेस करता है. एंड प्ले चेस और एक दूसरे से मतलब आगे जाना है, उस तरह से चेस करता है. So just you see 1 number, 2 number, 3 number and 4th number you have completed. This one, answer this question by filling the blanks. You have already put up the blanks, all the numbers. See the blackboard properly, see the all videos properly, then write all the number, okay, in your copy. Do not get anyone. Then you have to see here 4 dolphin. Just see the book. What color है dolphin? Color this dolphin in this color. डॉल्फिन का कितना कलर्स है, ठीक है. यहाँ पे आप लोग फर्स्ट नंबर में आप लोग का अगर आवाज पहुंच रहा है तो ब्लैक फर्स्ट जो है ब्लैक, आप लोग यहाँ पे ब्लैक इसको कलर्स करेंगे, उसके बाद ग्रे करेंगे, उसके बाद पिंक करेंगे, उसके बाद व्हाइट. अगेन आई रिपीटेड. फर्स्ट यू हैव टू सी 1 number, you have to color it black, then 2 number you color it gray, 3rd number you color it pink,
देन फोर्थ नंबर यू टू कलर इट व्हाइट। ओके, ये 4 कलर आपको अपने बुक में करना है, ठीक है। ये आपको पहले से दिया गया है। देन ये वोकैबुलरी, look at this picture and write them this animal that live in water। जो वाटर में रहते हैं उन लोगों का नाम आपको लिखना है पेज नंबर 96। ओके, just you see the blackboard, see the picture also 96 page, just you see and see the picture। ये जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, ये जो है ज्यादातर जो है पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं। ओके, वाटर में रहने वाले, वाटर में उनका घर जो है वाटर ही है, ठीक है। जैसे आप लोग का बहुत बड़ा बड़ा महासागर, समुद्र, इसमें इन लोग रहते हैं, ठीक है। हम लोग का जैसे घर अलग अलग गांव शहर में रहता है, उसी तरह से इन लोग का घर जो है ये पानी है, ठीक है। पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट नेम दिस एनिमल दैट लिव इन वाटर। वाटर में रहने वाले जो जानवर उनका नाम। फर्स्ट दिख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? स्टार फिश। क्या है? स्टार फिश। देन सेकंड नंबर आप लोग देख रहे हैं शार्क। ये बहुत डेंजर है, ठीक है। एक बार इसके काबू में आ गए उसके बाद लाइफ जो है खत्म। शार्क बहुत डेंजर जो ये एनिमल्स है, ठीक है, वाटर के। देन थर्ड नंबर व्हेल, ये भी बहुत डेंजरस है, ठीक है। देन फोर्थ नंबर ऑक्टोपस। ऑक्टोपस अजीब सा एक पानी का जो जीव है, अजीब सा जीव है, ठीक है। उसका कहाँ सर है कहाँ पैर है कुछ पता नहीं चलता। ऑक्टोपस बहुत ही डेंजरस है, एक अजीब टाइप का दिखने वाले पानी का जीव है, ठीक है। देन 5 नंबर, लेट्स सी द ब्लैक क्राब। ये जो है एक बार अगर पकड़ा लिए हाथ या उंगली में, ये छोड़ता नहीं है, इसको काट के ही दम लेता है, ठीक है। सो क्राब 5 नंबर ये टू सी द क्राब। देन 6 नंबर, ये दुनिया के सबसे धीमे चलने वाले जो जीव है, ये बहुत ही धीमी चलता है, टर्टल, ठीक है। ये बहुत ही धीमा चलता है, इसका एक कहानी भी है, ठीक है। जो धीमा चलता है वो आगे तक पहुंचता है, जो ज्यादा दौड़ता है वो थक जाता है, वो पीछे हो जाता है। इसकी एक कहानी भी आप बचपन में कहीं अपने दादी या मम्मी पापा से सुने होंगे, ठीक है, या आप पढ़े होंगे। सो टर्टल, ओके, ये एक जीव है जो कि पानी में रह सकता है। क्राब भी पानी में रह सकता है, ठीक है। Then you have to see search from the name of these water body is the puzzle। यहाँ पे आप लोग एक पजल जो है, which is the largest water body। largest water body कौन सा है? ओशन, ठीक है, महासागर, ठीक है। महासागर सबसे बड़ा वाटर बॉडी है। which is the smallest water body that is pond, यानी हमारा तालाब। सबसे छोटा तालाब, सबसे बड़ा ओशन यानी कि महासागर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सी, ओशन, लेक, स्ट्रीम, पॉन्ड। ये 5 ऑप्शन दिया गया है ये लोग बॉक्स में, ठीक है। इसमें से आप लोग को सर्चिंग करना है, उसको आप लोग जो है सर्च करके उसको राउंड करना है, ठीक है। which is the largest water body, one is the ocean and another is the pond। okay, let's see another number we have to do। okay, now the circle the correct answer। okay, see the blackboard properly, we have to do now circle the correct answer। page number 98, you have to see you have to see in your book page number 98। circle the correct answer। okay, correct answer। okay, circle the correct answer। here now one number we have to do the sentence। आप लोग को सेंटेंस देख रहे हैं ना, द सेंटेंस। टॉक अबाउट, द सेंटेंस टॉक अबाउट पीपी।
the bird, the meaning of sentence. The meaning of sentence in pink or orange. Cloud is here. So first number you have to see the sentence talk about Picky the bird. Picky the bird. The meaning of sentence in pink color, orange color. Cloud is clear. Okay. कौन सा clouds में है? आप लोग just see the some pink color and orange color, blue colors में आपका है naming the Picky. Picky और the bird. है? Birds और Picky का नाम कौन सा color है? It's very easy. It's only for the orange. Just you have to circle the colors. Here you have to circle. Orange color में दोनों. ठीक है? Then you have to do number 2 number. See the blackboard. Okay? It's very easy. Just you use your mind proper way. आप लोग अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये कौन सा कलर में है. The first letter of the sentence in orange. Clouds is always in two sentences where capital or small letter. Here the first letter of the sentence in orange cloud is always in capital or small letter. जितने भी orange कलर के cloud में दिया गया है, फर्स्ट लेटर कौन सा में है? कैपिटल लेटर में है या स्मॉल लेटर? जस्ट यू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड डू द क्वेश्चन आंसर प्रॉपर्ली व्हिच इज द राइट आंसर. सो फर्स्ट जो लेटर रहता है हम लोग को सभी को पता है कैपिटल में ही रहता है. सो जस्ट यू टू circle this one capital. Okay, then let's see third number. Okay, let's see third number we have to do. It's very easy. Just you understand the sentence, understand the question, then you have to do easily any numbers. Okay, आप लोग पहले समझेंगे, उसके बाद आसानी से कोई भी नंबर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन का हो आप लोग आसानी से कर सकते हैं. The sentence in orange clouds always ends with a full stop or comma. So dear student, just you understand, the sentence in orange cloud always end with full stop or comma. देखो यहाँ पे orange cloud का बात कहा जा रहा है. The sentence in orange cloud always end with, यानी कि end में, last में full stop है या comma है. So obviously you know about jersey, comma है या full stop है? क्या है? orange का, not pink. ऑरेंज, ठीक है? ऑरेंज का हर जगह में क्या है? फुल स्टॉप. सो वी हैव टू सर्कल इट फुल स्टॉप. ओके, देन दिस वन आल्सो कंप्लीटेड. ओके, circle the correct answer also completed. 1 2 3 number. So write all the number properly in your copy. Then you have to do another number. The number is take the correct words the next sentence.
टिक द करेक्ट वर्ड टू मेक सेंटेंस। देखो करेक्ट सेंटेंस बना होगा तो उसको हम लोग टिक करेंगे। लेट्स सी द ब्लैक बोर्ड वी हैव टू do and last number टिक द करेक्ट वर्ड्स मेक a sentence। okay, this one you have to write in your copy। okay, notate all the numbers properly, then you have to do tick the correct word। okay, tick the words that make a sentence, make a okay। First number, here the small letter Ravi was going to be on Monday, on Monday। Is it clear? Is it nice or true sentence? No। So here we have to just cross, okay, do not tick। Then you have to see two numbers, my mother, first letter mine is M, my mother learn, my mother learn to speak French when she went to Paris। Here number two number, my mother learned to speak French when she went to Paris। okay? जब मम्मी पेरिस जाते हैं तो उनको क्या लर्न करना पड़ता है? फ्रेंच लर्न। ठीक है, when she went to Paris। तो एक सेंटेंस बन गया, एक अच्छा सेंटेंस बन गया। तो you have to write take the right mark। okay, then third number, see the background, I am going to see a movie on Tuesday। ये आपका सेंटेंस एक बन गया क्लियरली। तो इसमें में भी आपको टिक करना है। आई एम गोइंग टू सी ए मूवी ऑन ट्यूसडे, मैं मूवी देखने कब जाऊंगा? ट्यूसडे। ठीक है, सो you have to tick here। okay, 2 number 3 number को टिक करना है। then another number you have to see। okay, see the blackboard properly। the student just to see and just to keep your mind which sentence is completed, which sentence is not completed, then you have to tick or wrong mark। okay, आप लोगों को ये देखना है कि सेंटेंस बना है या नहीं बना है, उसी से देखकर आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, then see the fourth number also। okay, fourth number, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse कार्टून। आप लोग सब देख रहे हैं, मुझे पता है सब। कार्टून इज फेवरेट mine। is it right? just you think Mickey Mouse कार्टून इज फेवरेट mine। ये कुछ बना, सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं बना। ठीक है, so here you have to tick cross। okay, then 5 number, Johnny's birthday present, birthday
of me is on the event. He wants a new bicycle. Is it right? ये एक सेंटेंस बना, कुछ समझ आया? कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है। जॉनी बर्थडे प्रेजेंट बर्थडे 12th of May is on the he wants I need bicycle आज। ये कुछ भी इधर उधर हो गया है, सेंटेंस बिल्कुल नहीं बना है, ठीक है। सो ये जो है आप लोग यहाँ पर इसमें भी आप लोग क्रॉस मार्क दे सकते, ठीक है। देन at the last numbers see the page number 99, ओके। कुछ पिक्चर दिया गया है, आप लोग को ये लिखना है the things is this picture have either CL or CL sound in their names, write the words with CL sound in the yellow basket and those with CR in the purple basket. Read out the words along with the sound of CL and CR is the words, okay। आप लोग CL का कुछ वर्ड्स बनाना है, CR का कुछ वर्ड्स बनाना है। एक येलो बास्केट है, एक जो है आप लोग का पर्पल बास्केट है, ठीक है। CL जो वर्ड्स बनाना है आप लोग को येलो बास्केट में, CR जो वर्ड्स बनाना है आप लोग को पर्पल में बनाना है, ठीक है। सो लेट्स सी द पिक्चर, just imagine and see picture properly. We have to do some number, okay। So dear student, I hope you all are ready for this one, okay। Is the last number. Next you have to do yourself, it's your homework, listening and speaking. So it is last number CL sound. First we have to CL yellow box, just to write, don't be write this one yellow and purple, दो बॉक्स है, दो बॉक्स है कि नहीं, येलो और पर्पल, ठीक है। ये बॉक्स है CL का, एक बॉक्स है CR, एक CR साउंड लिखना है, CL साउंड, ओके। CL लेटर में हम लोग को कुछ वर्ड्स बनाना है और CR लेटर में कुछ वर्ड्स बनाना है। एक येलो मत लिखना, अपने कॉपी में ये पर्पल भी मत लिखना, ओके। यू हैव टू जस्ट यू राइट इन बुक ओनली, आप लोग अपने बुक में ही लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लाउड, या क्लाउड, 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 ये बन गया आप लोगों का 3 वर्ड्स, ठीक है। येलो बॉक्स क्लाउड, 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 CLO CLO CL, ठीक है। CLO CL, क्लाउड, 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 क्लाउड। देन पर्पल बॉक्स में आप लोग लिखना है क्राब, क्रोकोडाइल और क्राब और क्रो, ठीक है। क्राब, क्रोकोडाइल, क्रो, ठीक है। येलो बॉक्स में CL लेटर में क्लाउड, क्लाउड, क्लाउड एंड पर्पल बॉक्स में CL लेटर में क्राब, क्रोकोडाइल, क्रो, ठीक है। लेट्स सी द blackboard properly and just you write all the numbers, okay, all the sentence properly, okay, then you have to complete this chapter. So dear student, I hope you all are understand properly all about dolphins. It's very easy, just clearly I have to show you all the question answer, okay। I hope you all are understand better and write all the numbers properly, do not leave anyone, okay। See the video one time, two time, third time, आप लोग जब तक नहीं समझेंगे पूरा देखते रहिए और सबको लिखिए, ठीक है। सो आपका जो टेक्स्ट बुक का जो है एक्सरसाइज 12 कंप्लीट है आज का, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग आवर वीडियो, ओके, थैंक यू वेरी मच।